of today is influence line diagram. आवाज आ रही? Yes, sir. The topic is influence line diagram, and स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं सबको? आप सबको स्लाइड्स शो हो रही हैं? Yes, sir. The topic is influence line diagram. Basically, influence line diagram. What is influence line diagram? It's a diagram. It's a line diagram which shows the variation of shear and moment along the length of the beam. It shows the variation of shear, moment, and reactions at a specific point when the load is moving. It is a little bit opposite to in shear force and bending moment diagram. shear force and bending moment diagram में क्या होता है? हमारा point of interest जो है that varies. ठीक है? तो shear force क्या है? Basically वो shear force की variation show करती है along the length of the beam. Bending moment diagram क्या है? That shows the variation of bending moment along the length of the beam. ठीक है? And the load remains static. But in influence line diagram, what happens? The load moves across the length of the beam and the point of interest remains the fix. ठीक है? So we normally draw the influence line diagram for different response functions. So response functions includes reactions, shears and moment. ठीक है जी? What we do in this diagram, that is very simple. इसमें कोई ऐसी नई चीज इन्वॉल्व नहीं है, just it's a technique. In normal shear force and bending moment diagrams, the load remains static and the cross section of the beam changes for various values. ठीक है? You know all about the shear force and bending moment diagram. ठीक है? वो आपकी along the length of the beam shear force और bending moment की variation को एक ग्राफ पे प्लॉट करती है, that is known as bending moment and shear force diagram. इसमें क्या होता है? In this influence line, load moves across the length of the beam and your point of interest for which you are drawing the influence line diagram remains fixed. ठीक है? For example, हम 3 response function हैं जिनके against influence line diagram plot करते हैं. Number 1 is reactions. Reactions के लिए must है. If you are drawing for the shear and moment, but before shear and moment you have to draw the reactions, because reactions के बगैर आप shear and moment की draw नहीं कर सकते. So reactions जो हैं उनकी भी influence line diagram आपने plot करनी, वो must है आपके लिए. वो you have to do it even if you are not asked to draw the influence line diagram. ठीक है? In influence line diagram for various functions, response functions consider shear, bending moment and reactions, cross section remains static and the load moves. ठीक है? बेसिकली इसमें हम सिंपल सी है टेक्निक, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है. इसमें हम क्या करते हैं? बेसिकली फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ बीम, सिंपली स्पॉटेड बीम है and the load which moves is having the load of unit load होता है that moves across the length of the beam. For example, if you can see the beam in the slides, that is a simply spotted beam having the span length of 12. ठीक है? It can be meter or foot any. ठीक हो गया जी? Now what you will do, you will divide the beam. For example, 12 है तो you divide the beam in different segments of equal lengths. For example, 12 है तो आप 3 3 का ले लें, 0, 3, 6, 9, 12. ठीक है? अगर ये 10 है तो आप 2 2 का भी ले सकते हैं. अगर आपका 15 है तो 3 के 5 ले लें, 0, 3, 6. ठीक है? 9, 12, 15. तो 12 है तो हमने 3 3 के ले लिए. ठीक है? सो आपने सेगमेंट्स लेने हैं. सबसे पहले आपने लोड को इन दिस पर्टिकुलर बीम you will put load at x is equals to 0, and where is 0? 0 is at the left hand end of the
बीम, दैट इज वेयर द हिंज इज, हिंज जहाँ है, आपने यूनिट लोड को वहाँ प्लेस करना है। आपने यूनिट लोड को प्लेस किया, देर आर नो अदर लोड्स, ठीक है सर, ओनली द यूनिट लोड इज देयर। तो आपने यूनिट लोड को प्लेस किया, नाउ यू विल कैलकुलेट रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस की भी बनानी है ना हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, बट फॉर शियर एंड मोमेंट वी हैव टू ड्रॉ फॉर द रिएक्शंस, क्योंकि रिएक्शंस के बगैर हम ना शियर लिख सकते हैं ना मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट यू विल put the unit load at hinge point at x is equals to 0, and then you will calculate the reactions, external support reactions. So definitely when the unit load is at hinge, so the reaction of hinge, vertical reactions and two vertical reactions, एक hinge पर है और एक roller पर है. The vertical reaction of the hinge will be 1 and the roller side will be 0. So we'll make a table, ठीक है, आप एक टेबल बना लें. At x is equals to 0, position x is equals to 0, आप लिख दें आर ए की वैल्यू और आर बी की, ठीक है. ए को आप, अगर आप हिंज को ए कह रहे हैं और रोलर को बी कह रहे हैं, तो आप आर ए की वैल्यू लिख दें. एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 आर ए 1 और आर बी जो है वो दैट इज 0. व्हेन द लोड मूव्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, जो इक्वल सेगमेंट्स आपने चूज किए हैं, यू विल पुट द यूनिट लोड एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, then you will again calculate the reactions because the reactions will change now. So the reactions of RA, क्योंकि this is very simple beam, simply supported, so we know that the reaction would be 0.75 at RA and 0.25 at RB. ठीक हो गया. Now you'll put the load at x is equals to 6. 6 is the center point of this beam. So when you put the load at center point, so then the reaction will be, both reactions will be same. मतलब सेंटर पे आया तो 50-50, यानी कि उसके 1 लोड है तो 0.5 इसका रिएक्शन होगा, 0.5 इसका रिएक्शन. यू कैन सी इन द फर्स्ट रो ऑफ दिस beam is in this slide as well. So now again you will put the load x is equals to 9. So then RA will be 0.25 and RB, which is actually at the roller end, that is 0.75. And finally at x is equals to 12, and that is the roller point. So you'll put the load at the roller point. So the value of the reactions will be RA is equals to 0 and RB, which is actually at roller, that would be 1. So now you will have different values of RA and RB when the load moves from 0 to 12. ठीक है. So what you will now do, you will plot this like this. आपने x को, position of load को x axis पे रखना है, and the value of response functions which can be reactions, shear और moment, उनको y axis पे रखना है. जब RA की हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम प्लॉट करनी है तो देखें at x is equal to 0 वैल्यू ऑफ रिएक्शन 1 थी, at x is equal to 2 value of RA was 0.75, at x is equal to 6 the value of the RA was 0.5. So you will plot those values. You can see the cursor of the, you can see, so you see RA पे 1 थी, जब आपके पास लोड गया 3 पर तो ये वैल्यू 0.75 आ गई, जब 6 पर गया ये 0.5 आ गई. इसी तरह आपने एक वैल्यू प्लॉट कर ली, एंड दैट इज द ग्राफ, दैट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर RA. Similarly, you will draw the influence line diagram for RB using the values which you will get in column of RB. जो आपने RB के लिए values आपने निकाली हैं वो आपने इस कॉलम में निकालनी. देखिए तो RA और RB की आपने डायग्राम प्लॉट कर दी. सो शेयर के लिए और मोमेंट की इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लिए अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाते हैं, वी हैव टू मेथड्स फॉर ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. सो वी विल स्टडी द नेक्स्ट मेथड इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो दिस इज कन्वेंशनल मेथड. इसमें क्या है, आपने अगर रिएक्शंस शेयर की बनानी है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम या मोमेंट की, तो आपने रिएक्शंस की पहले बनानी है, मस्ट. ठीक है. So now you have all the values of reactions when the load at x is equals to 0, the value of RA was 1 and RB was 0. ठीक है. Now you have to draw the influence line diagram for shear. You will be specified where you will have to draw the influence line diagram for the shear. For example, in this particular beam, in this example, so our point of interest is the center point.
फॉर द शीयर एंड मोमेंट। रिएक्शंस के लिए तो कोई पॉइंट नहीं है ना, वो तो रिएक्शंस है। सो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा फिक्स रह रहा है, लोड मूव कर रहा है, विच वाज द डेफिनेशन ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, जहां हम जिस पॉइंट के ऊपर हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शीयर एंड मोमेंट प्लॉट करनी है, दैट इज द सेंटर पॉइंट। यू नेम इट, मे बी यू कैन नेम इट ए, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, वट एवर द नेम। सो दैट इज से हम इसको कहते हैं सी पॉइंट। सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शीयर एट सी। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, सेम एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, पहले अपने रिएक्शंस कैलकुलेट करने। जब आपने एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर रिएक्शंस कैलकुलेट कर लिए, विच वाज कैलकुलेटेड इन द वेरी फर्स्ट सेल ऑफ दिस फिगर, यू सी व्हेन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब यूनिट लोड आपका जीरो पर था तो आर ए 1 था और आर बी 0 था। अब आपने क्या करना है, इसी तरह सेम जिस तरह आप शेयर कैलकुलेट करते हैं, आपने सेंटर पॉइंट पर वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी। तो जब आपने सेंटर पॉइंट पर वैल्यू ऑफ शेयर निकाली, यहाँ से सेगमेंट कट किया सेंटर से, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। राइट से भी आप शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं। लेफ्ट से करेंगे तो एक अपवर्ड लोड है, एक डाउनवर्ड लोड है, 1 - 1 0, तो वैल्यू ऑफ शेयर क्या आ रहेगी, 0। यानी कि जब लोड x इज इक्वल टू 0 पर है तो वी सी, वैल्यू ऑफ शेयर एट सी क्या है, 0। देखें यहाँ आपको कोई शेयर फोर्स डायग्राम नहीं प्लॉट हो। अब आपने लोड को मूव कर दिया एट एक्स इज इक्वल टू 3, फिर आपने रिएक्शंस तो ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं, रिएक्शंस की तो इन्फ्लुएंस लाइन, सो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट रिएक्शंस अगेन। सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट रिएक्शंस फॉर एवरी स्टेप ऑफ द लोड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फॉर एवरी स्टेप ऑफ द लोड, आपने लोड को अब मूव किया एक्स इक्वल टू 3 पे, फिर रिएक्शंस कैलकुलेट ऑलरेडी हुए में 0.75 और 0.25। नाउ यू विल कैलकुलेट द रिएक्शन वैल्यू ऑफ शेयर एट सी अगेन। सी से कट करेंगे, दो सेगमेंट्स हैं आपके पास, राइट वाला भी है, लेफ्ट वाला भी है। लेफ्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं शेयर, राइट से भी कर सकते हैं। अगर आप राइट से करेंगे तो एक फोर्स है 0.25, लेफ्ट से करेंगे दो फोर्सेज हैं। लेफ्ट साइड पे हमें पता है अपवर्ड शेयर क्या होती है, पॉजिटिव, तो 0.75 पॉजिटिव है, -1, तो वैल्यू ऑफ शेयर क्या रहेगी, -0.25। जब लोड आपका एक्स इक्वल टू, जब लोड आपका एक्स इक्वल टू 0 पर था हिंज पॉइंट के ऊपर, तो वैल्यू ऑफ शेयर क्या आई, 0। जब लोड आपका 3 पर मूव हो गया तो वैल्यू ऑफ शेयर एट सी क्या आई, वैल्यू ऑफ शेयर एट सी क्या आई, -0.25। ठीक है, हाँ जी, इज दिस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इज दिस क्लियर? हाँ जी, आप सबको क्लियर है जो सुन रहे हैं? हेलो, हाँ जी, हेलो, यस सर, आ रही है समझ। अच्छा, साद बिलाल, ये अक्सा मजहर कौन है, वो इज अक्सा मजहर? अक्सा मजहर कहाँ है, आवाज आ रही है? अक्सा मजहर, सर आ रही है आवाज आपकी। नहीं अक्सा मजहर से पूछा आपसे, नहीं अक्सा मजहर किधर है भाई? मेरे ख्याल में काल मिला के चली गई। यार ऐसे अगर आपने ऑनलाइन नहीं पढ़ना होता तो आप कह दें हम ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, हमें आप फिजिकली पढ़ा दें। मैंने तो पूछा था क्योंकि ये वीक ऑनलाइन है और हमारी क्लास थी, हम लेक्चर मिस नहीं करना चाहते थे, मे बी हमें आगे टाइम ना मिले। तो अब आपका ये हाल है कि आप जो है वो उधर, मुझे पता है कि उसने कॉल में लाई होगी और वो फिर आगे पीछे म्यूट करके जो है वो, किधर है अक्सर मदर? आप उसको सब मैसेज करेंगे कि ओ हो हैं, शायद वो खाना खाने का टाइम है या बर्तन ना धो रही है। ओहो बर्तन धो रही हो तो यार बर्तन धोने हैं तो वो उसको पता है ना क्लास है कि नहीं है, इसीलिए तो सीआर को कहा था कि मुझे टाइम बताएं। वो तो, ये अरफा फारूक किधर है? जी सर। हाँ आप बताएं, वो अक्सा को कहें कि वो लेक्चर में अटेंटिव रहे और आके इधर प्रेजेंस हो। जी सर कह देती हूँ। हाँ ये बताएं ना, स्लाइड्स आपको नजर आ रही है ना? जी सर नजर आ रही है, समझ हाँ भी आ रहा है। हाँ समझ आ रहा है।
अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ भाई, ये सब जो लोग आए ना 27, ये एटलीस्ट ये लोग अटेंटिव बैठे ना, मैं आप क्वेश्चन करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा कि पढ़ा दिया और चले गए, फिर आपको समझ नहीं आती, आप कहते हैं ठीक है ऑनलाइन में मुश्किल होता है, बट दैट मैं इसलिए ज़्यादा इसको सिलेक्ट भी नहीं किया कि आज ज़्यादा, मैंने ये एक सिंपल सा टॉपिक है, मैंने कहा ये कंप्लीट करवा दें, फिर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का जो है वो बाकी पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट फिजिकली जब क्लास होगी वहाँ पढ़ेंगे। मैंने कहा कि आर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द शेयर कहाँ है? सर जिस पॉइंट के ऊपर हम लोड अप्लाई कर रहे होते हैं वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल गलत। क्यों? हमने नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर शेयर जो है ना वो हमारा एक ही है, वो फिक्स है। लोड मूव कर, आपने तो बिल्कुल उलट बात कर दी। सर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस प्रॉब्लम में कौन सा है? तो रिएक्शन सर। और नहीं भाई, रिएक्शन किधर से आ गए? समझ नहीं आ रही आपसे सवाल की एक्चुअली। मैंने आपसे पूछा कि आप जो वैल्यू ऑफ शेयर लिख रही हैं, यू आर राइटिंग द वैल्यू ऑफ शेयर फॉर एवरी स्टेप ऑफ द लोड वेयर द लोड मूव्स फ्रॉम 0 to 12, कर रहे हैं ना वैल्यू ऑफ शेयर? वो वैल्यू ऑफ शेयर किस पॉइंट के ऊपर है? सर ये तो डिपेंड कर रहा होगा कि हम किस इंटरवल को जो है कंसीडर करें। बिल्कुल भी आप गलत बात करी। मैं आपको इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल है, मैंने इतनी खोल खोल के बयान की है, लेकिन आप में से किसी ने शायद सुना ही नहीं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रहता है। इस प्रॉब्लम में उसने कहा है कि ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शंस एंड फॉर शियर एंड मोमेंट। अब रिएक्शंस के लिए तो कोई पॉइंट नहीं होता, रिएक्शंस तो आपके एंड सपोर्ट रिएक्शंस है, उसके लिए शियर ड्रॉ कर लेंगे। शियर और मोमेंट के लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, या पॉइंट जिसकी आपने शियर फोर्स और शियर फोर्स कर रहा हूँ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम प्लॉट करनी है, वो है सेंटर पॉइंट, वो जहां ब्लैक लाइन लगी हुई। मैंने आपको कहा उसको कोई नेम दे दें, आप सी कर दें। रिएक्शंस को अगर ए और बी कह रहे हैं सपोर्ट्स को, तो उसको सी कर दें। सो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है? सेंटर पॉइंट सर। सेंटर पॉइंट इन दिस बीम। ये चेंज हो सकता है, मैं आपको कुछ और भी कह सकता हूँ, बट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट for which you are drawing the influence line diagram for shear and influence line diagram for moment is the center point, or you name it, or you call this point as a C point. ठीक है सर समझ आ गई। हाँ, अब आपने क्या करना है, रिएक्शंस की तो आपने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम प्लॉट कर लिया, आपने सबसे पहले लोड को रखा x इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या है? x 0 का यहाँ क्या मतलब है? सर मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी जी, आपसे। सर x0 मतलब ये पहला इंटरवल हम कंसीडर कर रहे हैं। पहला x0 मतलब इंटरवल, हमारा लोड किस जगह पे? x 0 का क्या मतलब है? पॉइंट जो हमारा फर्स्ट पॉइंट जहाँ से हम स्टार्ट करें, बीम का जो जहां से, स्टार्ट है, तो जो वो हिंज कौन सा के पॉइंट है ऊपर जिसके ऊपर कौन सी सपोर्ट है? नेम कर दें उसको। RA के ऊपर हमने लोड आर ए के ऊपर जब लोड है ना, वो सामने नजर भी आ रहा है यार, ये तो चीज अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो स्लाइड में लिखा भी हुआ है, ड्रॉ हुआ है। जब लोड आपका, मेरे कर्सर को अगर, जब लोड आपका x इक्वल टू 0 है तो यूनिट लोड कहाँ है? 0 पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो आपने रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं। x इक्वल टू 0 के ऊपर रिएक्शंस आ गए ना, R1 और ये 0। फिर आपने लोड को मूव करना है x, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ रिएक्शंस वाला भी। फिर आपने लोड को मूव करना है x इक्वल टू 3 पर, फिर दोबारा रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं। फिर आपने लोड को मूव करना है x इक्वल टू 6 पर, फिर दोबारा रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं। जब आपने 6 पर मूव किया तो अंडरस्टूड है कि जब सेंटर पे लोड आया तो 0.5 ये रिएक्शन होगा, 0.5 ये रिएक्शन होगा। इसी तरह फिर आपने लोड को मूव करना है x इक्वल टू 9 पर, फिर आपने रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं। फिर आपने लोड को मूव करना है x इक्वल टू 12 पर, 12 वाला कौन सा पॉइंट है? जो रोलर सपोर्ट है। फिर आपने रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं। अब आपके पास फॉर ईच स्टेप ऑफ लोड, फॉर ईच position of the load, x is equal to 0, 3, 6, 9, 12, for each position of the load you have the values of reactions RA and RB, यानी कि आपके पास RA की कितनी वैल्यूज आ गई? 1 2 3 4 5, और RB की कितनी वैल्यू आ गई? 5। सो नाउ यू विल प्लॉट द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शंस। ये देखें,
आप एक्स एक्सिस पे आपने पोजीशन ऑफ लोड को रखना है, यानी कि 0, 3, 6, 9, 12, और वाई एक्सिस पे रिस्पॉन्स फंक्शंस को रखना है। तो अगर आप रिएक्शंस के लिए प्लॉट कर रहे हैं तो रिएक्शंस होंगे, शेयर के लिए प्लॉट कर रहे हैं तो शेयर होगा। ठीक है, तो आपने जब 0 पे रखा तो वैल्यू ऑफ रिएक्शन 1 थी, तो आपने टेबल बना लिया ना, और फिर आपने वो वैल्यूज को प्लॉट कर दिया, तो यू विल गेट दिस लाइन, दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन आर ए। सिमिलरली आपने आर बी के लिए भी प्लॉट कर ली, दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर बी। फॉर shear and moment, for shear and moment you must have to draw the influence line diagram for reactions first, because कुछ बीम्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको रिएक्शंस की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती फॉर द कैलकुलेशन ऑफ shear, बट दैट इज द कैंटिलीवर बीम। ठीक है, बट नॉर्मली यू हैव टू डू इट, रिएक्शंस आपने कैलकुलेट करने ही करने हैं। ठीक है, so now once you have drawn the influence line diagram for reactions, now you will draw the influence line diagram for shear. बट फॉर shear मैंने आपको पहले बताया कि एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन होगा। अब इस बीम में गिवन कौन सा है? सेंटर पॉइंट, जिसके लिए हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर shear प्लॉट करनी है, और उसी पॉइंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर मोमेंट प्लॉट करनी। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब लोड फिर आपका जब x इज इक्वल टू 0 पे है तो आपने वैल्यू ऑफ shear देखनी है c के ऊपर क्या है। ठीक है, जब लोड x 0 पर है तो रिएक्शंस, फिर रिएक्शंस ऑलरेडी कैलकुलेटेड, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट रिएक्शंस अगेन। x 0 पर है तो वैल्यू ऑफ shear एट c क्या हो जाएगी, वो आप c के ऊपर से एक सेक्शन कट करेंगे, जिस तरह आप कन्वेंशनली करते हैं shear फोर्स कैलकुलेट। तो आप दो सेक्शन में डिवाइड हो जाएगी, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। तो वैल्यू ऑफ shear क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0 है तो वो वैल्यू ऑफ shear क्या आ जाएगी 1। अगर लेफ्ट से लेके करते हैं 1 - 1 0, राइट से करते हैं तो वो है ही ऑलरेडी रिएक्शन 0, तो दोनों से सेम वैल्यू आएगी shear की। सो once you will put the load at x is equal to 0, you will calculate the value of shear at c. Now you will move the load at x is equal to 3. जब लोड आपका 3 पर है तो now you will calculate again the value of shear at c. अब वैल्यू ऑफ shear at c क्या होगी, रिएक्शंस फिर वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारे पास। अब लोड आपका यहाँ गया, आप ये रिएक्शंस कैलकुलेटेड है। अब आपने क्या करना है, फिर सेगमेंट c से कट करना है shear का। आप कैलकुलेट करेंगे तो अब आप देखें RA 0.75 अपर लेफ्ट साइड पे अपवर्ड पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड नेगेटिव, तो 0.75 - 1 दैट इज द shear at C, तो ये -0.25 आ जाएगी। सिमिलरली जगह राइट से करना चाहते हैं तो राइट साइड पे अगर आप देखें एक ही फोर्स है 0.25, तो 0.25 है, और राइट साइड पे अपवर्ड नेगेटिव होता है, सो यू विल राइट -0.2, यानी कि एट x इज इक्वल टू 0 आप हेडिंग, एक तो हेडिंग आर ए और आर बी की बना ली, फिर आपने वी सी की एक हेडिंग बना ली। उस कॉलम में x इज इक्वल टू 0 के आगे आप लिख देंगे वी सी 0 एट x इज इक्वल टू 3 वी सी -0.25। ठीक है, नाउ यू विल पुट द लोड एट x इज इक्वल टू 6, एट x इज इक्वल टू 6। अब आप लोड कहां पुट करेंगे, 6 के ऊपर। अब क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है shear के अंदर, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लें। जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अब सी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट जब आप 6 के ऊपर देखेंगे ना, तो आपने लोड को ये एज्यूम करना है कि इसी पोजीशन के ऊपर लोड आपने यूनिट लोड लगाना है जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड जस्ट टू द राइट ऑफ सी। पॉइंट वो एक ही कंसिडर होगा एक्चुअली, बट एक दफा जब आप जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी करेंगे और जस्ट टू द राइट ऑफ सी करेंगे, यू विल सी अ जंप इन द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द shear। क्योंकि देखें जब आपका लोड जस्ट टू द लेफ्ट है, ये देखिए इस डॉटेड लाइन से जस्ट टू द लेफ्ट है, तो जब आप shear कैलकुलेट करेंगे सी के ऊपर में, तो ये 1 उसकी कैलकुलेशन में आएगा ना, यानी कि +0.5 - 1 -0.5। लेकिन once the load will move just to the right of this dotted line, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से रिएक्शंस वही रहने हैं, क्योंकि हमने वो पॉइंट तो बिल्कुल जस्ट टू द लेफ्ट और जस्ट टू द राइट करके देख रहे हैं, रिएक्शंस तो सेम होंगे 0.5 तो when the load just moved to the right of this dotted line, so then the value of shear will be +0.5, value of shear at C will be +0.5. In the previous case, when the load was just to the left of this dotted line, the value of shear was -0.5. So you will see a jump from -0.5 to 0.5 in the shear in the influence line diagram for shear. ठीक है,
सो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा शियर के लिए, कोई भी पॉइंट, तो उसमें जस्ट टू द लेफ्ट और जस्ट टू द राइट आपने लोड रख के देखना है, जस्ट टू द लेफ्ट एंड जस्ट टू द राइट, पॉइंट वो एक ही कंसिडर होगा, ठीक है। सो यू विल सी अ जंप, ठीक है, इन द शियर फोर्स डायग्राम, इन द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर। सो आपने फिर उस टेबल में यू विल सी टेबल, देखें ये 6 के ऊपर 2 पोजीशंस हैं, -0.5 and +0.5, just to the left and just to the right. When the load is just to the left and when the load is just to the right. So you will have two values of shear at 6. एक है -0.5 और दूसरी कौन सी है, +0.5, ठीक है, -0.5 and at the same point you will have +0.5. So you will see a jump in the diagram. जब इसको प्लॉट करेंगे तो डेफिनेटली उस पॉइंट के ऊपर पहले -0.5 आएगी और फिर ऊपर चल जाएगी +0.5 पे. So you will see a jump in the shear force die, and that is only for the shear, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से जस्ट टू द लेफ्ट और जस्ट टू द राइट हमने लोड रख के देखना है, ठीक है जी, इज दिस क्लियर? बाकी आपने फिर लोड को फिर 9 पे लेके जाना है, 9 पे लेकर जाएंगे तो आप फिर आ रहे कैलकुलेट, ऑलरेडी कैलकुलेटर है तो आप लेफ्ट से कर लें तो सिंपल है, +0.5 +0.25 आपके पास वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी, और जब आपके पास लोड एग्जैक्टली रोलर पे चला जाएगा तो वैल्यू ऑफ शेयर एट सी 0 हो जाएगी। आप आइदर यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड, इट्स अप टू यू। देखें ना यहाँ से आप, अगर आपके पास ये लोड आ गया तो ये रिएक्शन 0 था, सेंटर से कट करें, लेफ्ट साइड से देख लें 0, तो नाउ यू विल हैव, देखें फॉर ईच स्टेप 0 पे वैल्यू ऑफ शेयर क्या थी 0, 3 पर -0.25, 6 पर 2 वैल्यूज है, माइनस पर पहले माइनस है और फिर जस्ट द राइट पे लेफ्ट है, प्लस है, फिर 9 के ऊपर आपकी वैल्यू ऑफ शेयर 0.25 और 12 पर फिर 0 है। इन तमाम वैल्यूज को आप प्लॉट कर लें, लाइक देखें 0 पर 0 थी, ठीक है, जब आपका लोड गया 3 पर तो ये आ गई -0.25, जब आपका 6 पर गया 2 वैल्यूज आई, -0.5 और फिर +0.5, और फिर जब 9 पर गया तो आपका वैल्यू आ गई 0.25 और जब 12 पर गया तो वैल्यू ऑफ शेयर 0 आ गई। सो यू सी दिस इज द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द शेयर एट सी। इज दिस क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है आप सबको? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पूछ लेना। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा तो फिर आप, जी जी पूछें। तो ये जो जस्ट टू द लेफ्ट और राइट वाला जो आपने बताया, ये सिर्फ सेंटर पॉइंट के लिए करना है? ये सिर्फ सेंटर नहीं, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, इधर सेंटर पॉइंट है ना। Yes, अगर sir. मैं आपसे ये कहूँ, ये देखें इस प्रॉब्लम, मैं आपसे ये कहूँ फॉर एग्जांपल इसी बीम में कि सेंटर पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 3, जो आपका लोड 3 फुट पे है, ये मेरा पॉइंट, जहाँ मेरा कर्सर है, यानी कि हिंज से 3 फुट के ऊपर मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसको मैं सी कह लूँ, तो फिर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो फिर मैंने यूनिट लोड इस पॉइंट के जस्ट टू द लेफ्ट राइट पे रखना है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है ना। डेफिनेटली इंटरवल के अंदर वो पॉइंट तो आएगा ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो आप इंटरवल सेलेक्ट करेंगे उसमें वो पॉइंट तो आएगा ना, और वो Yes, आना sir. भी जरूरी है, तो वो आपका ठीक। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आप देखेंगे एक जंप आएगी, क्योंकि जस्ट टू द लेफ्ट करेंगे तो आपका लोड 1 कैलकुलेशन में शामिल होगा और जस्ट टू द राइट में वो कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा। मोमेंट के केस में जंप क्यों नहीं आती, क्योंकि जस्ट टू द लेफ्ट और राइट करेंगे तो मोमेंट की वैल्यू सेम रहनी है, क्योंकि पॉइंट तो सेम हमने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इन मोमेंट देयर इज नो जंप, ओनली द जंप इज इन शियर, ठीक है जी। ओके सर। हाँ, नाउ that was the influence line diagram for the shear. Now the influence line diagram for the moment. अब मोमेंट के लिए आपने क्या करना है, देखें x 0 पर है, रिएक्शन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो आपके पास रिएक्शन ये आ गए 1 और 1। आपने वैल्यू ऑफ मोमेंट एट सी कैलकुलेट करनी है जब x 0 पर है। वैल्यू ऑफ मोमेंट एट सी क्या हो जाएगी, 1 × 3, 1 × 3, 3 - 3 0, तो वैल्यू ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगी व्हेन द लोड इज एट x, क्या हो जाएगी
हाँ जी बताएं। ये जिस स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था ये आप बताएं। यस सर। वैल्यू ऑफ मोमेंट क्या, जब लोड आपका 0 पर है, यूनिट लोड, रिएक्शंस ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं, तो मोमेंट, वैल्यू ऑफ मोमेंट एट सी क्या होगी, किस तरह कैलकुलेट करेंगे, चलिए ये बता दें। फिर जीरो ही नहीं रहेगी। ये कैसे होगी, चलो 0 तो रहेगी, मैंने बोल दिया तो आपने फिर 0 को कॉपी कर ली। कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ मोमेंट? यार मोमेंट कैलकुलेट करना आता है ना आपको, अभी आपने सर वो डिफ्लेक्शन पढ़ी उसमें मोमेंट। रिएक्शंस वगैरह को यूज करेंगे ना, रिएक्शंस को हाँ तो यूज रिएक्शन वगैरह को यूज कैसे करेंगे, सिंपल सा तो सामने नजर आ रहा है, बता दें। हाँ। आखिर मोमेंट कैलकुलेट करेंगे ना सी पर, तो कैसे करेंगे, सी से सेगमेंट कट करेंगे। यस सर। सर सी से वही अब सेगमेंट कट करेंगे और सेगमेंट कट कर लिया, दो पार्ट्स में सेगमेंट। बीम डिवाइड हो गई, एक लेफ्ट और एक राइट, आपकी मर्जी, आप राइट से कैलकुलेट कर लें या यस लेफ्ट सर। से कर लें। तो अगर हम लेफ्ट से करते हैं तो क्या लेफ्ट से होगा, करेंगे तो लोड आ जाएगा, 1 यूनिट लोड आ जाएगा साथ, और हाँ रिएक्शन आ 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे मोमेंट को, ये जीरो से। 0 से क्यों करेंगे भाई, मोम नहीं। आपका ये मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है, यस सर। ये कर्सर आप, ये हमारा यस। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। राइट 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 सर। भाई आप सब बाकी स्टूडेंट्स भी गौर से सुने, इतना मुश्किल नहीं है जो आप बिल्कुल ही इररेलेवेंट से आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब आपने बिल्कुल नहीं कुछ सुना, ये बच्चों वाला है, ये तो सारी चीजें आपने की, जस्ट एक टेक्निक है और क्या है। आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेंटर पॉइंट सी, आपका लोड 0 पर है, 1 0 पर है, रिएक्शंस कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, रिएक्शन से ही सब शेयर और मोमेंट आता है ना। अब आपने इस पॉइंट के ऊपर, सेंटर पॉइंट पर वैल्यू ऑफ मोमेंट फाइंड आउट करनी है, जो कि मोमेंट एट सी है, जिसको हम सी कह रहे हैं। तो क्या होगा, 1 इंटू दिस डिस्टेंस, और ऊपर वाला 1 इंटू दिस डिस्टेंस, ये वाला 1 जो है 1 इंटू दिस डिस्टेंस 6, एक क्लॉकवाइज कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो क्या हो रहेगा 1 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 6 0। ठीक है, या यस आप सर। राइट से कर लें, चलो लेफ्ट से आपको बहुत कैलकुलेशन मुश्किल नजर आए, तो राइट पे क्या है, रिएक्शन 0 है, राइट से हो तो जाएगा। 0 इंटू 6 0। यस। ठीक हो गया। अब लोड आपका जब मूव किया 1 के ऊपर, सॉरी 3 पोजीशन के ऊपर, रिएक्शंस क्या आ गए 0.75 और 0.75 इंटू 6 हो जाएगा और 1 इंटू 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। वेरी गुड। देखो जरा सा आप समझने की कोशिश करें ना, तो ये बिल्कुल आपकी इररिलेवेंट लॉजिक है कि ठीक है ऑनलाइन में थोड़ा सा होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब आप उधर लगा के कॉल को साइलेंट पे लगाकर या वो म्यूट पे लगाकर आप आगे, तो फिर तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो अब आप इसको थोड़ा सा भी समझ, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो आपका जब लोड गया पोजीशन 3 के ऊपर, रिएक्शन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है आपके, तो आपने फिर मोमेंट, वैल्यू ऑफ मोमेंट सी कैलकुलेट करनी है। तो 0.75 लेफ्ट से हम कर रहे हैं, 0.75 इंटू 6, लेफ्ट पे क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 1 इंटू 3, जो भी वैल्यू आती है 0.75 इंटू 6 करते हैं, 1 टू 3 जो भी वैल्यू, या आप राइट से कर लें, वो आएगी 0.25 इंटू 6, 0.25 इंटू 6 यानी कि 1.5। ठीक है जी। और लेफ्ट राइट साइड पे काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू आपकी क्या आ गई, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आपकी वैल्यू आ गई 1.5 व्हेन द लोड एट x इज इक्वल टू 3। अब आपका लोड जब 6 पे चला गया, ठीक है, रिएक्शंस क्या है 0.5 इंटू 0.5। अब आपके पास जब लोड 6 पे चला गया, तो क्या आपकी मोमेंट, वैल्यू मोमेंट एट सी हो रहेगी, हाँ जी बताओ भाई, आप ही बताओ। सर ये तो 0.5 इंटू 6 हो जाएगा। 0.5 और 1 इंटू 1, अब सर वो 1 तो यानी बिल्कुल उसके लेफ्ट पे लिए तो 0 होगा शायद। 0 होगा ना, इतना करने बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 0.5 इंटू 6, 1 इंटू 0, लेफ्ट से करें या राइट से करें, दोनों से सेम इक्वेशन बनती है, 0.5 इंटू 6 एंड और ये क्लॉकवाइज है तो क्या रहेगा 0.5 इंटू 6 3, लेफ्ट यस और पॉजिटिव। क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, जब लोड 6 पे गया तो वैल्यू मोमेंट क्या आ गई, +3। जब आपका लोड 0 पर था तो मोमेंट की वैल्यू एट सी 0 पर थी। व्हेन द लोड एट x is equal to 3, the value of moment क्या थी 1.5, when the load was at 6, the value of moment was 3। अब आपका लोड 9 पे चला गया, ठीक है, अब आपकी वैल्यू ऑफ मोमेंट क्या होगी, सर लेफ्ट हैंड साइड से अगर करेंगे तो
25 into 6 करेंगे 6 और बिल्कुल, 1 और into 3 राइट से करेंगे तो फिर वो पॉइंट यस 75 इंटू 6 और 1 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप लेफ्ट से करना है या राइट से। तो वो क्या आ रहेगा 1.5 क्लॉकवाइज और लेफ्ट साइड पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। अब आपका जब लोड चला गया 12 के ऊपर तो वैल्यू ऑफ मोमेंट एट सी क्या हो रहेगी? 0 into 6 लेफ्ट साइड से, और अगर राइट साइड से करेंगे हाँ तो 1 into 6 और फिर 1 into 6 माइनस हो जाएगा वो। हाँ, तो बस वो आपका जीरो वैल्यू आ गई। सो नाउ यू विल हैव 5 वैल्यूज ऑफ मोमेंट अगेंस्ट ईच पोजीशन ऑफ द लोड। आपने उन वैल्यूज को प्लॉट कर लेना है। ये देखिए, ये देखिए, जब आपका x 0 था तो मोमेंट की वैल्यू क्या थी? 0। x 3 पर गया लोड, यानी कि लोड 3 पर गया तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहा ना, तो 1.5। लोड 6 पर गया तो वैल्यू मोमेंट 3 आ गई। 6 पर 3 मोमेंट के लिए वैल्यू नहीं चेंज होती। ठीक है, देखिए उसने कॉलम बनाया हुआ तो उसने यहाँ भी 3 लिख दी, यहाँ भी 3। 9 पर गया तो वैल्यू ऑफ मोमेंट क्या आ गई? 1.5। 12 पर गया तो वैल्यू ऑफ मोमेंट क्या आ गई? 0। इन वैल्यूज को, ये 0, 1.5, 3, 1.50, इनको प्लॉट कर लें तो यू विल गेट अ मोमेंट डायग्राम लाइक दिस। ये देखिए, जब लोड x 0 पर था मोमेंट 0, x गया आपका 3 पर 1.5, फिर आपका x गया 6 पर 3, फिर आपका x 9 पर तो वैल्यू क्या आ गई? 1.5 अगेन, एंड फिर आपका x जब 12 पर गया तो फिर 0 हो गई। तो ये आपने एक वैल्यू प्लॉट कर ली, एक डायग्राम प्लॉट कर ली, एंड दैट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द मोमेंट एट C. इज दिस क्लियर? क्योंकि ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स हैं तो इनकी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो होगी हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, फॉर जो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स 2 में पढ़ेंगे, उनकी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कर्व लाइन होती है। ठीक है, कर्व होता है। फॉर स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम is straight line like this, you can see in the figures. Is this clear? यस सर। हाँ जी, यस any सर। confusion? सर जी जी, सर ये जो ILD बनाई हुई है रिएक्शन ए की और रिएक्शन बी की, सर जी ये जी, इंडिपेंडेंट होती है मिड पॉइंट से, मतलब पूरे एक बीम की बनी हुई है ये, इसमें तो कोई देखें नहीं होता ना? 3 रिस्पॉन्स फंक्शन है ना, रिएक्शंस मीन्स तमाम रिएक्शंस, वर्टिकल रिएक्शंस में आपकी आर ए है, आर बी है, या जो भी है, अगर रिएक्शंस आपके हॉरिजॉन्टल हो तो हॉरिजॉन्टल पे तो इम्पैक्ट पड़ना ही नहीं होता, जीरो उसकी तो लाइन नहीं बननी। ठीक है, तो जो आपके वर्टिकल रिएक्शंस हैं सपोर्ट्स के ऊपर, उनकी इन्फ्लुएंस लाइन कैसे बनेगी? देखिए इन्फ्लुएंस लाइन का पर्पस क्या है, अब आपने क्योंकि न्यूमेरिकल कर लिया, नाउ आई विल एक्सप्लेन योर ब्रीफ यू। आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंट रिस्पांस फंक्शन है कौन से? रिएक्शंस, शियर एंड मोमेंट। आप रिएक्शंस के लिए तो आप पूरी प्लॉट, रिएक्शंस के लिए क्या करेंगे? आपका लोड पहले एक पोजीशन पर है, आपने वैल्यू ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट कर ली, फिर लोड दूसरी पोजीशन पर गया, वैल्यू ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, फिर तीसरी पोजीशन पर गया, वैल्यू ऑफ रिएक्शन चेंज। उन जो चेंज वैल्यू ऑफ रिएक्शन है फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द लोड, उनको प्लॉट करना है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये देखें, जब आपका लोड 0 पर था तो आर ए 1 था और आर बी उसी पॉइंट पर 0 था। जब आपका लोड 3 पर गया तो आर ए 0.75 हो गया और ये 0.25 हो गया। जब आपका लोड 6 पर गया तो आर ए 0.5 हो गया, आर बी 0.5 हो गया। जब 9 पर गया तो ये हो गया, 12 पर गया तो 0 और 1 हो गया। अब ये जो पहला वाला कॉलम है 1.75, 0.5, 0.25 और 0, इस वाले कॉलम को यहाँ प्लॉट किया गया है। देखें 0 पर वैल्यू क्या थी रिएक्शन की? 1। 3 पर वैल्यू क्या है? यहाँ इसने लिखी नहीं है ना, तो 0.75 है। 6 पर वैल्यू क्या है? 0.5। 9 पर वैल्यू क्या है? 0.25। और 12 पर वैल्यू ऑफ रिएक्शन फॉर आर ए क्या है? 0। ये जो वैल्यू पहले वर्टिकल कॉलम में है ना, ये वाली, इनको प्लॉट किया है। फिर दूसरे वाले कॉलम की, वर्टिकल कॉलम की जो है वो वैल्यूज को प्लॉट किया, दैट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर बी। सिमिलरली फिर हमने शियर और मोमेंट की प्लॉट, बट फॉर शियर एंड मोमेंट वी मस्ट हैव अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको मेंशन होगा ये कौन सा पॉइंट है, एंड द लोड विल ऑलवेज बी अ यूनिट लोड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आगे लोड्स की वैल्यूज भी होती हैं, वो मूविंग लोड्स की, वो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, क्लियर है आप सबको? हाँ जी, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन?
हाँ जी, एनी कंफ्यूजन? तो दिस वाज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अब आप कोई भी बीम हो उसके ऊपर यूनिट लोड लगाकर उसको मूव करके डिफरेंट रिस्पांस फंक्शंस की इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप कर लें। एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, बस एक टेक्निक है एंड दैट इज नोन एज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है जी, क्योंकि स्टूडेंट्स कम हैं और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी थी, तो काइंडली आप रिकॉर्डिंग से ज़रूर, जो स्टूडेंट्स नहीं हैं वो ये रिकॉर्डिंग को सुन लें, उनको समझ आ जाएगा। ना समझ आए तो फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं फिजिकली, तो अपन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आएंगे तो हम उस वक्त भी पूछ सकते हैं, वैसे भी आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।